Hello everyone, welcome to my channel Biology Door. So today we are going to study about the cell. और कौन से सेल के बारे में पढ़ेंगे हम? मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में. ओके, प्रोकैरियोटिक सेल. So before this, I just let you know what do you mean by cell. Cell क्या है? Okay, so cell is a basic unit of our life. It is a basic unit of life. Also we call it a structural unit of our life. Also there is a definition, fundamental unit of life, and one more, that is functional. So these four things are combinedly, you can say that. What do you mean by cell? Cell is the basic unit of life, structural and fundamental, functional, whatever these units combinedly known as what is cell. Okay. So before this, I would like to tell you cell are of two types. One is prokaryotic cell and next one is eukaryotic cell. Okay. So prokaryotic cell is a like basically unicellular cell आप कह सकते हो, unicellular. और यूकैरियोटिक सेल में आते हैं हमारे प्लांट सेल्स, मल्टीसेलुलर सेल्स एंड एनिमल सेल्स. Okay, the example of prokaryotic is bacteria. Okay, so these are the basic things that you have to know about what do you mean by cell. And now let me tell you about the discovery of cell. Discoveries. Okay, so initially Robert Hooke is a scientist who observed the cell in what? In the cork cell. And cork cell is found in the bark of the tree. Bark of the tree. Okay, जो पेड़ का तना होता है उसमें कॉर्क सेल्स जो है किसने ऑब्जर्व करी? सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने. So Robert Hooke observed the cork cells, and cork cell is mainly dead cells. Okay, so he told that the cells seems to be the block of the what? Honeybee. Honeybee का हर एक ब्लॉक को उसने क्या कहा? सेल कहा. ठीक है, जैसे कि ब्रिक्स होते हैं, सो हम एक ब्रिक को हम कह सकते हैं इट इज अ सेल. सो वैसे ही रॉबर्ट हुक ने क्या करा, जैसे हनीबी का छत्ता होता है उसमें एक कोई भी अगर हम बॉक्स देखें उसको हम कंसीडर करेंगे एज अ सेल. ओके, सो ही ऑब्जर्व द फर्स्ट सेल इन द बार्क ऑफ द ट्री. ओके, सबसे पहले दिस वन. देन सबसे पहले जो लाइव सेल ऑब्जर्व करी थी, फर्स्ट लिविंग सेल ऑब्जर्व बाय एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक. ओके, नाउ द टर्न फॉर सेल थ्योरी. अब सेल थ्योरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू study about the cell. Okay, cell theory is given by what? Schleiden and Swan. So Schleiden and Swan जो scientist थे, Schleiden and Swan. Okay, Schleiden कौन थे? Schleiden was the German botanist.
Okay, and Swan was the British zoologist. Okay, so what they provide, they given the cell theory. So number one जो हमारी इनकी cell theory थी वो क्या थी? All the organism are made up of cells. Okay, so all organisms are formed from cells. सो जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हुए हैं? सेल से बने हैं. और सेकेंड थ्योरी इनकी क्या थी? द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी मतलब ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म is a result of the interaction and activities. What does it mean? It means जो जितने भी ऑर्गेनिज्म जो सेल से बने हुए हैं उनके अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही है और इंटरेक्शन हो रही है, इट इज, ये किसकी हेल्प से हो रही है? सेल. अब सेल के अंदर ही तो एक्टिविटीज होंगी विद द हेल्प ऑफ सम सेल ऑर्गेनल्स, राइट. और इनके बीच में जो भी फंक्शंस ये फॉलो करते हैं, हमारी बॉडी की जितने भी फंक्शंस है वो कौन फॉलो करेगा? वो सेल ही जो है फॉलो करता है, राइट. सो दीज टू थियोरीज आर गिवन बाय स्क्लीडन एंड स्वान. देन व्हाट हैपेंड? देन हमारे एक और भाई साहब आए, मतलब एक और साइंटिस्ट आए, नेम रडोल्फ वर्चो. ठीक है, इन्होंने क्या करा? इन्होंने ये दो ऑलरेडी हमारे पास जो सेल थ्योरी थी इसमें एक और सेल थ्योरी ऐड कर दी. सो व्हाट वाज द सेल थ्योरी? थर्ड सेल थ्योरी, दैट ऑल सेल्स कम फ्रॉम द pre-existing cell, omnicellular ecellular. ओके, मतलब हर एक सेल जो है, हर एक इंडिविजुअल सेल, इट कम्स फ्रॉम व्हाट? अगर हमारे पास ये दो सेल है सपोज, ठीक है, ये दो सेल कहाँ से बनी है? ये हमारी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी हुई है. ये सेल किससे बनी है? एक और सेल से बनी हुई. मतलब हर एक सेल इज कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. ओके, so this is the basic information about the cell theory. Now just move towards the prokaryotic cell. So what do you mean by prokaryotic cell? First of all, let me draw the diagram of what? Prokaryotic cell. So here is the glycocalyx. This yellow color is the glycocalyx layer. Okay. So let me draw clearly so that you can understand. और ये जो हमने ड्रॉ करा है इसमें हमारी है ये सेल मेम्ब्रेन, and we have one cell wall also. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कर देती हूँ, लेबल कर देती हूँ. So this is the glycocalyx, this yellow color, this is the outermost covering of the cell, prokaryotic cell की. ठीक है, उसके बाद है हमारी cell wall, then we have third one cell membrane. ठीक है, देन और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे? दिस वन इज द फ्लैजिला, इसको हम कहते हैं फ्लैजिला. यहाँ पे ऑलरेडी जैसे डायग्राम में आप देख पा रहे हैं. ठीक है, और ये हमारा न्यूक्लियोइड हो गया. दीज आर सम सर्कुलर प्लाज्मिड्स, and we have the ribosomes, right?
Okay, so I need to just level all the things. So this one is the nucleoid. And what is this? This one is the pilus. पिलाई भी कह सकते हैं और इसको आप फिम्ब्राई भी कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्म, ओके। देन वी हैव राइबोसोम्स। देन व्हाट वी हैव, फ्लैजिला हो गया, ठीक है, सेल वॉल हो गया। एंड this one, this invaginate structure is what? Mesosome. So it is very important. We can just study further. Okay, so let's move. Before this, I will just let you know, flagella is required for the locomotion. फ्लैजिला किसके लिए यहाँ पे हेल्प कर रहा है? बैक्टीरिया को लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है। और जो ये पाइलस है, जो पिलाइज और फिम्ब्राई है, ये क्या करती हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट, हेल्प इन द अटैचमेंट, नॉट इन द लोकोमोशन। ओके, सो ये आपको बात याद रखनी है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम इसको एक बार आगे इसमें डिटेल्ड में एक एक करके सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव। सबसे पहला जो हमारा स्ट्रक्चर था वो था ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय ग्लाइकोकैलिक्स? ग्लाइकोकैलिक्स इज द आउटरमोस्ट कवरिंग। आउटरमोस्ट व्हाट? कवरिंग। अब जब भी आउटरमोस्ट कवरिंग की बात करें हम, दे आर रिक्वायर्ड फॉर द and they are provide the protection. Okay, so ये protection provide करती है, and they are of mainly two types. Number one is smooth and second one is hard. Smooth को हम कहते हैं lime layer and hard one is the capsule. ठीक है, ये हो गया हमारा glycocalyx. Now the second structure, this one is the cell wall. अब जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है, ये किससे बनी होती है? मोस्टली दे आर मेड अप ऑफ म्यूरिन और पेप्टाइडोग्लाइकन। ओके, सो दिस पेप्टाइडोग्लाइकन इज मेड अप ऑफ two things. Number one is protein and the second one is sugar, or you can say glycan और sugar, ठीक है। शुगर की चेन से बने होते हैं। देन शुगर में भी कौन से शुगर यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है? एक है हमारे पास नैम एंड देन नेक्स्ट वन इज अ नैग। नैम मीन्स एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, and the nag is n acetyl glutamine, ठीक है। एंड दिस प्रोटीन इज मेड अप ऑफ व्हाट? अमाइनो एसिड्स, राइट। अब कौन से अमाइनो एसिड्स यहाँ रिक्वायर्ड है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल? तो हमारे पास है डी एलानिन, then L-alanine, then we have L-lysine, then last one is D-glutamic acid, ठीक है। तो ये सारे के सारे अमाइनो एसिड जो है ये किसमें प्रेजेंट होते हैं? दे ऑल आर प्रेजेंट इन दी, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। सो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये सारे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, प्लस वी हैव वन मोर टिकॉइक एसिड, प्लस यहां पे मैं लिख देती हूं, प्लस टिकॉइक एसिड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दी
gram positive bacteria, not in gram negative. Okay, then if we talk about gram negative bacteria, अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो एल लाइसिन है, देखा, ये 3 अमाइनो एसिड्स आर सेम बट इन प्लेस ऑफ एल लाइसिन डाई अमीनो palmic acid, that is DAPA is present. ठीक है, तो ये हमारा ओवरव्यू है किसका, सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है यहाँ पे वो इन चीजों से बनी होती है. ठीक है, तो नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स दी व्हाट, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन जो हमने देखी थी. अब सेल मेम्ब्रेन में क्या चीजें हैं, थर्ड वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे कि आपको पता है, दे आर लाइक रिक्वायर्ड फॉर दी सिलेक्टिवली परमेबल, राइट. तो यहाँ से हमारा जो है सिमिलर स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल का है. ठीक है, अब हमने जो सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी वहां पे हमने एक ये स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसको हम कहते हैं मीजोजोम. मीजोजोम इज फाउंड इन बैक्टीरिया, राइट. So what do you mean by mesosome? So mesosome is basically required for the 3 R's. 3 R means respiration, the function of mesosome, respiration, replication and reproduction. 3 R's. ओके, सो ये सारे फंक्शन हमारे यूकैरियोटिक सेल में कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है. रेस्पिरेशन, रेप्लिकेशन, राइट, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है हमारे. सिमिलर, सो आप कह सकते हो कि प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कौन बिहेव करता है, मीजोजोम. ठीक है, सो मीजोजोम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, सो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरह के इनवेजिनेटेड होती है, इनवेजिनेटेड फॉर्म. ठीक है, ये इस तरीके से इनवेजिनेटेड फॉर्म में होगी. नाउ वी हैव द फोर्थ स्ट्रक्चर, दैट इज प्लाज्मिड. प्लाज्मिड इज फाउंड इन बैक्टीरिया, राइट. इकोलाई बैक्टीरिया हमने पढ़ा था. सो एक्स्ट्रा, इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटीरियल. ठीक है, सो हमारे पास 2 टाइप के प्लाज्मिड होते हैं, एक होता है एफ प्लाज्मिड, एक होता है आर प्लाज्मिड. एफ प्लाज्मिड इज रिक्वायर्ड फॉर द फर्टिलिटी, ओके, एंड आर प्लाज्मिड इज रिक्वायर्ड फॉर द रेसिस्टेंस. ओके, एंड रेसिस्टेंट या फिर एंटीबायोटिक की तरह यहाँ पे वर्क करता है. सो अपार्ट फ्रॉम दिस हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली यहाँ पे, सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया, राइट, और पाइलस के बारे में पढ़ लिया. सो नंबर 5 इज पिलाइज. जो पिलाइज थे, दे आर लोकोमोशन में हेल्प करती है, नहीं, लोकोमोशन में हेल्प नहीं करती वो. दे आर रिक्वायर्ड फॉर द अटैचमेंट, हेल्प्स इन अटैचमेंट बिटवीन, जैसे ये एक बैक्टीरिया हमारे पास, इसकी जो अटैचमेंट होगी, इसकी अटैचमेंट में कौन हेल्प करेगा, पिलाइज हेल्प करेंगी. ठीक है, देन हमने और क्या क्या चीजें यहाँ पे थी, हमारे पास था एक राइबोसोम स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट थी, राइट. सो राइबोसोम्स आर ऑल्सो फाउंड इन व्हाट, कौन से राइबोसोम, 70S राइबोसोम्स आर फाउंड इन बैक्टीरिया. S मीन्स सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, और आप कह सकते हो स्वेटबर्ग. और पॉलीसोम्स, व्हाट आर पॉलीसोम्स, polyribosomes. So they are found in a polyribosome. Polyribosome means if the ribosome are interconnected, then it form a polyribosome. Okay, then these are the whole structure about the bacteria. Okay, so prokaryotic cell के बारे में हमने डिटेल वर्जन में पढ़ लिया. ये S क्या था, स्वेटबर्ग यूनिट, और आप कह सकते हो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट.
ठीक है, so this is the basic idea about prokaryotic cell. ठीक है, so that's all for today's video. दो इंफॉर्मेशन रह गई, एक सिंपल सी, एक क्वेश्चन है, सबसे छोटा जो, अगर आप सेल, स्मॉलेस्ट सेल की बात करें, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? माइकोप्लाज्मा, PPLO. एंड द लार्जेस्ट सेल कौन सी है? ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग. ओके, so you have to just remember these things. So if you like the video, just do like and subscribe my channel so that you get all the videos related to our NEET and various CSIR aspirants, right? So just stay tuned with us. Thank you very much. Have a nice day.